Good morning, student. Welcome back to Arpan International School. How are you? I hope you are fine. Be safe at home. So, student, I am your EVS teacher, Mrs. Neelam, going to teach you the second part of our worksheet of lesson number 21, The World in My Home. So, in the first part of this worksheet video, we have seen question number 1, MCQ, question number 2, filling the blanks, question number 3, write true or false, and question number 4, match the pair. Now, in the today's video, we are going to see how to answer the following question in 1 or 2 sentences and answer the following questions in a brief. So, let's start. First question, question number 5. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. First question, in your home, do people quarrel over fans, TV, newspaper, chairs or anything else? आपके घर में भी कभी आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच क्वारलिंग होती है यानी झगड़ा होता है क्या? जस्ट लाइक फैन को लेके, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग एल्स, ऐसे जस्ट लाइक अ स्मॉल थिंग्स होती है. ओके, तो ये स्मॉल थिंग्स पे भी हमारे घर में क्वेरलिंग होती है. सो आंसर इज येस. आई एंड माई ब्रदर वॉन्ट टू रीड द न्यूज़पेपर अर्ली. तो येस, जैसे कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों को भी क्या चाहिए? वी वॉन्ट टू रीड द न्यूज़पेपर अर्ली. सुबह जल्दी रीड करने के लिए हमें न्यूज़पेपर चाहिए होता है और हम क्या करते हैं उसके लिए? क्वारलिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन सेकेंड, इन योर होम हु सेटल सच क्वेरल्स. तो आपके घर में ये ऐसे जो स्मॉल क्वेरलिंग होती है, झगड़े होते हैं, उसे कौन सेटल करता है? सो आंसर इज माय पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? ऐसे छोटे छोटे झगड़े वो फिनिश करते हैं और उसे सेटल करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट योर होम व्हेन देयर वाज अ क्वेरल. आपके घर में एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको शेयर करना है कि उसके वजह से आपके घर में क्या हुई थी? क्वेरलिंग हुई थी या झगड़ा हुआ था. सो आंसर इज माय ब्रदर वाज क्राइंग फॉर न्यूज़पेपर. मेरा भाई न्यूज़पेपर के लिए रो रहा था. ही वाज क्राइंग and I gave him an old one and he was very happy. He did not even notice it was old. तो मैंने भी क्या किया? I gave him an old newspaper. तो मैंने उसको पुराना वाला न्यूज़पेपर दे दिया. And he was happy that time because he don't notice what is the date on that newspaper and he directly read that paper. And he was very happy that time. So this was a very funny incident happened at my home. The next one, question number 4, have you ever seen people anywhere else quarrel over something? आपने कभी देखा है कि कहीं पे पीपल ऐसे क्वेरलिंग करते हुए, झगड़ा करते हुए? सो आंसर इज येस. Then fifth one, like Pratibha's family, does this happen in your house or any of your friend's house? What do you think about this? Just like in a Pratibha's family, what happened that time? She was very hurriedly and before finishing her playing, she entered before 7 o'clock in the evening. It was a rule for Pratibha. And her brothers Sanjay and Sandeep, they were playing after that 7 o'clock. So like this happened in your house or any of your friend's house? What do you think about this? So my answer is no. The rules should be same for all. That means if the girl was entering at the 7 o'clock in the evening, before 7 o'clock in the evening, the boys also should follow the same rule. So these types of rule we are following in our house. All the children of the family are the same. There is no difference in girls and boys. Okay, the next one, sixth question,
Why should there be one rule for her and another for her brothers? But what can she do? There is a different rule in Pratibha's family for girls and boys. Okay, but what can she do? Can she do something? What you are thinking about this? So answer is there should not be different rule for boys and girls, कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए डिफरेंट रूल नहीं होना चाहिए. शी कैन टॉक टू हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी चाहिए. दैट ऑल द चिल्ड्रंस आर same, there is no difference in between girls and boys and she can talk to her parents. तो अपने पेरेंट्स के साथ बात करके उसने क्या करना चाहिए, ये बातें सारी क्लियर करनी चाहिए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस, इफ यू आर to write different ending for this story, how will you end it? The story of Meena aunty. Meena auntie's story in what? Kulfi seller had made some mistake in counting and he asked for less money, but Meena auntie count and gave the right amount of money to that kulfi seller. If you was there, so what will be, if you are writing the story, what will be the ending? You will think about that. So answer is the kulfi seller gives one kulfi free of cost because the Meena auntie gave the right amount of rupees to him. That's why after happily he will gives one kulfi free of cost. Like this last ending we will do in our story. Then second one, is there anyone in your family who is like Meena auntie? Who? आपके घर में भी कोई ऐसे जो मीना आंटी जैसे ऑनेस्ट है? सबके घर में होता है, ऐसे है तो वो कौन है? सो आंसर इज माई पेरेंट्स आर लाइक मीना आंटी. मेरे पेरेंट्स किसके जैसे हैं? मीना आंटी जैसे हैं. दे ऑलवेज इंस्पायर मी टू बी ऑनेस्ट. वो मुझे क्या करते हैं? हमेशा इंस्पायर करते हैं ऑनेस्ट रहने के लिए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, what would the children have thought if Meena auntie had paid less money to the kulfi seller, and what do you think about this? So is the second situation was there, if the Meena auntie had paid the less money so to the kulfi seller, so what would the children have thought and what do you think about this? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो अगर मीना आंटी ने कुल्फी सेलर को कम रुपीस दिए होते? सो आंसर इज द चिल्ड्रन वुड थिंक दैट आंटी इज वेरी स्मार्ट. बच्चों को क्या लगता कि आंटी क्या है? बहुत ही स्मार्ट है. दिस शुड नॉट बी डन. ऐसा नहीं होना चाहिए था. इफ वी डिसीव एनीवन वी विल ऑल्सो बी डिसीव्ड बाय अदर. अगर हम किसी को चीट करते हैं, डिसीव करते हैं, तो कोई और भी ऐसे है जो हमें क्या करता है बच्चों? चीट कर सकता है. सो अगर आंटी लेस पैसे पे करती तो बच्चों को ऐसे लगता कि आंटी क्या है? बहुत ही स्मार्ट है. और ऐसे नहीं होना चाहिए था. अगर हम किसी के साथ चीट करते तो कोई हमारे साथ भी चीट कर सकता है. अंडरस्टूड? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what do you think Akshay will do if Akshay's grandmother told him that do not drink anything from the Anil's house and do not eat anything? So what do you think that after the volleyball match Akshay will do? So answer is he will drink water because he was very tired and he was very thirsty. By seeing all his friends who were drinking the same water from the Anil's house, he will also drink water. Okay. Then fifth question, what do you think Akshay's grandmother warned him not to be drink even water in Anil's house? आपको क्या लगता है कि अक्षय के ग्रैंडमदर ने ऐसे उसको वॉर्न क्यों किया होगा कि अनिल के घर से कुछ भी
खाना नहीं है और पीना भी नहीं है। सो आंसर इज बिकॉज देयर फैमिलीज वेयर डिफरेंट, क्योंकि उसकी फैमिली क्या थी बच्चों, डिफरेंट थी। इसलिए अक्षय की ग्रैंड मदर ने क्या कहा था कि उसके घर से ना ही कुछ खाना है और ना ही पीना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक्स अक्षय ग्रैंड मदर? आप ऐसे किसी को जानते हो कि जिसकी सोच अक्षय की ग्रैंड मदर जैसी होती है? सो यस, मैनी ओल्ड पीपल थिंक लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर। जो काफ़ी ओल्ड पीपल है उसकी थिंकिंग कैसी है बच्चों, अक्षय की ग्रैंड मदर जैसी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर्स थिंक? आप एग्री हो अक्षय की ग्रैंड मदर की थिंकिंग के लिए? सो आंसर इज नो, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे फ्रेंड्स के घर पे जाके हम पानी भी ना पिए। सो वी आर नॉट एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर थिंकिंग। ओके, देन 8th, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज? अक्षय कन्फ्यूज क्यों हुआ था? कैन यू टेल मी? सो आंसर इज if he follows his grandmother's advice he cannot satisfy his thirst, because he after the volleyball match he was very thirsty and tired. So if he follows his grandmother's advice, that means warning, do not drink water from the Anil's house, so he cannot satisfy his thirst. 9th one, what do you think Akshay should do? अक्षय को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सो आंसर इज ही शुड ड्रिंक वाटर, उसको पानी पी लेना चाहिए। 10th one, इफ यू वेयर इन धोंडू's प्लेस व्हाट वुड यू डू? दैट मीन्स हियर अ नेम इज रिप्लेस, हियर द नेम वॉज करसन, दैट हु वांट टू बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड grains. So name was not a dhondu here, name of Karshan. आप अगर करशन की प्लेस पे होते तो आप क्या करते? सो आई बाय दी मशीन, मैंने वो चक्की की मशीन खरीद ली होती, है ना। इफ वेयर यू आर इन अ करशंस प्लेस व्हाट डू यू डू? हियर राइट द नेम करशन, नॉट अ धोंडू। यहाँ पे क्या करना है आपको, करशन ही लिखना है, धोंडू नहीं लिखना है। ओके, अंडरस्टूड? The next one, 11, has it ever happened with you that you wanted to do something badly but the elders in the family would not allow you to do it? आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है कि आपको कुछ और करना है पर आपकी फैमिली उसके लिए एग्री नहीं है? सो आंसर इज यस, ऐसे कई बार हुआ है। Question number 12, how would you like if it only one person made all the decisions for your family? आपको कैसे लगेगा कि एक ही पर्सन पूरे फैमिली के डिसीजंस अकेली ही क्या करे, लेती है? तो आंसर है नो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड चॉइसेस। नहीं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर फैमिली मेम्बर्स क्या होता है, डिफरेंट होता है और उसकी अपनी क्या होती है, डिफरेंट नीड्स भी होती है, डिफरेंट चॉइसेस भी होती है कि नहीं? अगर हमें खाने में कुछ और पसंद है और हमारे फैमिली मेम्बर्स को और, तो सबकी चॉइसेस क्या होती है बच्चों, अलग होती है। तो वैसे ही एक ही मेंबर पूरे फैमिली के सारे डिसीजंस नहीं ले सकता। देन 13, हैव यू एवर डिसलाइक एनीबडीज टच, हुज टच डिड यू डिसलाइक? आपको भी किसी का टच कभी डिसलाइक हुआ है, अच्छा नहीं लगा है, ऐसे कोई है तो आप वो बताओ। सो आंसर इज नो, आई डू नॉट एवर डिसलाइक एनीबडीज टच, जस्ट लाइक रितु। Then 14, if you were in Ritu's place what would you do? अगर आप रितु के प्लेस पे होते तो आप क्या करते? सो आंसर इज आई वुड रिक्वेस्ट अंकल नॉट टू टच मी, कि मुझे टच नहीं करना है। हम क्या करते, अंकल को रिक्वेस्ट करते। देन 15th, टॉक अबाउट व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन। अगर कोई टच हमें किसी का डिसलाइक लगे तो हम इसके बारे में और क्या कर सकते हैं? सो आंसर इज आई कैन टेल माई
पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ कि ये टच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बारे में हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, एवरीबडीज टच इज नॉट द सेम। Ritu did not like it when Meena's uncle held her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was such a this difference? जैसे कि सबका टच क्या होता है बच्चों, एक जैसा नहीं होता। कि रितु को मीना के अंकल का टच अच्छा नहीं लगता था जब वो उसका हाथ पकड़ते थे, बट उसको मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। वॉट डू यू थिंक देयर वॉज दिस डिफरेंस? आपको क्या लगता है कि ऐसा डिफरेंस क्यों है? सो आंसर इज देयर आर डिफरेंट पीपल, दे हैविंग डिफरेंट टेस्ट एंड आइडिया। कि हमारे जो भी अराउंड पीपल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, काफ़ी डिफरेंट होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट टेस्ट एंड आइडिया। सो वी लाइक दोज हु हैव सिमिलर चॉइसेस लाइक अस। तो हमें किसका टच अच्छा लगता है? वी लाइक दोज ओनली हु हैव सिमिलर चॉइसेस लाइक अस। जिसकी चॉइसेस हमारी चॉइसेस से सिमिलर होती है उसी के साथ हमें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, और उसका टच भी हमें अच्छा लगता है। Understood about it? Yes or no? Yes. So write these all the questions in your EVS notebook and learn it properly. Okay? Having any doubt, any question, please contact me. Till then, thank you.